worship? आप में से कितनों ने आराधना का आनंद उठाया? Are you guys ready to receive the word क्या this आप प्रभु के morning? वचन को आज की सुबह में सुनने के लिए तैयार हैं? I'm telling you, we're going to have a good time. मैंने आपसे कहा हमारा समय बहुत अच्छा बीतेगा। I've been praying for this moment, this youth conference for a long time, and I know that God's going to touch each and every one of your lives. इस जवानों की सभा के लिए मैं बहुत दिनों से प्रार्थना करता हूं। मेरी अपेक्षा है परमेश्वर आप में से हर एक को स्पर्श करेगा। Are you guys ready? क्या आप तैयार हैं? We're going to have a good time today. हम आज अच्छे समय को साथ में बिताएंगे। And you guys are having a good time so far, right? और अब तक आपने बहुत अच्छा समय बिताया, क्या ये सही है? Let me tell you something, it's just getting started. मैं आपसे कहना चाहता हूं बस हमने शुरुआत ही की है अब। Dr. Thomas said you guys like to do competitions. डॉक्टर थॉमस ने कहा कि आप प्रतियोगिता करना चाहते हैं। There's a lot of competitions here at the youth conference. और जवानों की सभा में अगर कहूं तो बहुत सी प्रतियोगिताएं होती है। And the first competition I'm going to have today is the boys against the girls here. और सबसे पहली प्रतियोगिता जो मैं अभी करवाने वाला हूं वो भाइयों और बहनों के मध्य में होगी। My brothers and the sisters. मेरे भाई और मेरी बहनें। And what I want to do is I want to see which one of you guys are more excited to be here. तो मैं ये पता लगाना चाहता हूँ प्रतियोगिता के द्वारा कि आप में से कौन या भाई या बहन कौन ज्यादा उत्साहित है। Where are my brothers at? भाई लोग कहाँ हैं? If you're a brother and you're excited to be here, give a shout. जोर से चिल्लाएं करें हालेलुया। Hallelujah! If you're a lady and you're happy to be here today, give a hallelujah. हालेलुया। Oh, I don't know. That is close. That's very तो close. लगभग एक समान ही था, बराबर मात्रा में आवाज आपने दिखाई। Ready to do this one more time? एक बार और हम करेंगे। All the brothers in the house, give a hallelujah. Ooh, that was better. That was better. And now all the ladies in the house, all my sisters, give a hallelujah. Oh, amen, amen, amen. It's good to be here. यहाँ पर रहना बहुत बड़ी बात है। I want to tell you guys something today. There is similarities between me and you today. आज की सुबह आपको बताना चाहूँगा कि आपके और मेरे मध्य में कुछ समानताएं हैं। First of all, when I came in this morning, you guys registered and I gave you guys candy. सबसे पहले जब मैं इस सुबह यहाँ पर आया, आप अपने पंजीयन के लिए यहाँ पर आए, मैंने आपको उसके बदले में कैंडीज दिए। Did you guys enjoy the candy? क्या आपको कैंडी अच्छी लगी? Yes, that's a good start to the day. हाँ, ये दिन की बहुत अच्छी शुरुआत थी। That's right. You didn't get candy? Oh, we will get you candy. Lots of candy. Don't worry, Dr. Thomas. We'll get you चिंता न candy. करें, आपको चॉकलेट And मिलेगा। that's exactly my point. We have something in common. We both love candy. हम सभी को कैंडी बहुत पसंद है। And we're both young people. पहली समानता हमें कैंडी पसंद है, दूसरी समानता हम आप और मैं दोनों जवान हैं। I'm looking out and I see a lot of young people that are excited to be here. और जब मैं यहाँ से देखता हूँ बहुत से जवान मुझे दिखाई दे रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हैं। Everybody's here is a young person. और हर कोई जो यहाँ पर है वो जवान है। Dr. Thomas is a young person. डॉक्टर थॉमस जवान हैं। Pastor Merrill, who's my grandpa, is a young पास्टर person. मेल जो मेरे दादाजी हैं वो भी जवान हैं। And it's good to be young people and serving God. Amen? और जवान रहकर परमेश्वर की सेवा करना भली बात है। And now, how many of you guys are in school right now? और आप में से कितने लोग अब भी स्कूल शालाओं में जाते हैं? अपने हाथों को ऊपर कर दिखाएं। Nobody. Oh, you see the hands? Oh, okay, there you go. Okay, there's 3 of you. Good. Now, how many of you guys are in Bible college right now? 3-4 लोगों ने हाथ उठाया। बाइबल कॉलेज में कितने लोग हैं? अपने हाथों को ऊपर उठा के दिखाएं। Oh, all the hands go up. All the hands कितने go up. लोगों की हाथें ऊपर जा रही हैं? No, I am so glad you guys are here. That is something we have in common. You guys are in Bible college and I'm in Bible college. और ये बहुत अगली समानता की बात यदि कहें तो आप भी बाइबल कॉलेज में हैं, मैं भी बाइबल कॉलेज में हूँ। So I know about the homework and the exams and Pastor Merrill's hermeneutics class. तो जब परीक्षा का समय आता है, कैसे होमवर्क, गृह कार्य, असाइनमेंट्स करने पड़ते हैं, जैसे पास्टर मेरिल एक हर्मेनेटिक्स के टीचर हैं मेरे, बहुत सारे कामों को करना पड़ता है। And I have to go through the same things. और उन्हीं सारी बातों से होकर मुझे भी जाना पड़ता है। And so I heard you guys just got done with exams and you guys been working hard for this week. और मैं देखा कि गत हफ्ता में आपकी परीक्षाएं थी, आप उसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। I want to say I'm glad you guys are all here. I want you to sit back, relax, and enjoy this weekend. मैं बहुत ही खुश हूँ कि परीक्षा के बाद आप सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा इस सप्ताह के अंत में जब हम पहुँचे हैं, आप बड़े इत्मीनान से बैठकर प्रभु के वचन का आनंद उठाएं। And I think the last
similarity we have with each other is the most important. This is the most important similarity we have. इतनी सारी समानताओं को देखने के बाद अब एक और समानता आपके और मेरे मध्य में पाई जाती है जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है। We both love Jesus. हम दोनों प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। Amen? आमीन। Before I begin, I want to share a little bit of my testimony with you guys. इससे पहले कि वचन में जाऊं, अपनी गवाही से कुछ बातें आपके मध्य रखना चाहूंगा। That way you guys can get to know me a little bit, and I'm not just a stranger up here in the pulpit. तो जिसके द्वारा आप मेरे बारे में और बेहतर रूप से जान पाएंगे और मैं आपके लिए एक अपरिचित व्यक्ति न रह जाऊंगा। I grew up in the church, and my dad's a pastor, my grandpa's a pastor, and even my great-grandfather was a pastor. और मैं एक ऐसी कलीसिया में पला बड़ा जहाँ मेरे पिता पासवान हैं, मेरे परदादा पासवान थे और उनके परदादा भी वहाँ पर पासवान रह चुके हैं। And when I was very young, God saved my life. I accepted Jesus into my life when I was very young. जब मैं जवान था, लड़का ही था, तब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। We got the kids here, and when I was about 7 or 8, about their age, I accepted the Lord Jesus into my life. और यहाँ पर आप बच्चों को देख सकते हैं, इनमें से एक के समान जब मैं 8 वर्ष का ही था, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। And it's been a journey ever since. और तब से लेकर अब तक यह मसीह में मेरी यात्रा रही है। And I've been to many youth conferences like this in my life. इस प्रकार के जवानों की कई सभाओं में मैं अपने जीवन पर्यंत में गया। Youth conferences that I will never forget. और ऐसी जवानों की सभाएं जिसे मैं भूल नहीं सकता। And I remember one youth conference in particular changed my life. और विशेषकर एक जवानों की सभा थी जहाँ पर मैं गया जिसमें मेरा जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो गया। Amazing things happened through God. परमेश्वर के द्वारा वहाँ पर अद्भुत बातें होने लगी। And I was sitting there in my seat, and there was an altar call to come to the front. और मैं अपने कुर्सी पर यूं ही बैठा हुआ जैसे आप बैठे हुए हैं और जब वेदी की पुकार वहाँ पर हुई, And I ran to the front, and I was just praying to God, and I got filled with the Holy Ghost. और जब वेदी की पुकार हुई मैं सामने गया और मैंने अपने आप को देखा, मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा मुझ में उतर गया। And I started speaking other tongues, and I didn't really know what was going on. और मैं अन्य भाषाओं में बोलना शुरू कर दिया, मुझे पता नहीं कि चारों तरफ क्या हो रहा है। But I felt a peace and a joy in my life that I've never experienced before. और मैंने ऐसी शांति और आनंद का एहसास किया जिसका मैंने एहसास पहले कभी नहीं किया था। And when I was sitting there, I remember, and I was on my knees, and God gave me the call to be a pastor. और जब मैं वहाँ पर अपने घुटनों में ही था, प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे पासवानी की सेवकाई के लिए बुलाहट को दिया। And I remember He said, Luke, I want you to be a pastor. अब मुझे सुना था परमेश्वर की आवाज, उसने मुझसे कहा कि लूक, मैं चाहता हूँ कि तुम पासवान बनो। And that day my life was forever changed. और उस दिन से लेकर मेरे जीवन हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। I'm telling you today, God has something for your life. मैं कहना चाहूँगा आपके लिए परमेश्वर के पास कुछ तो है। People are going to be saved. People are going to get filled with the Holy Ghost, and people are going to be called today. और आज के इस दिन में लोग पवित्र आत्मा से भर दिए जाएंगे, उद्धार को पाएंगे, परमेश्वर के द्वारा बुलाए भी जाएंगे। Are you guys ready? क्या आप तैयार हैं? Yes. And I remember sitting down right where you guys are sitting, and I would look at the people that were speaking in the youth conference. और जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, मैंने लोगों को दूसरी यूथ कॉन्फ्रेंस में देखा कि वो बातें कर रहे थे। And I remember sitting there and I was praying. I'm like, God, I want that. Like God gave me that desire to be able to speak in front of young people. और जब लोगों को ऐसे प्रचार करते हुए सुनता, जवानों की सभाओं में देखता, मेरे मन में एक ऐसी इच्छा जागी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मुझे इतनी योग्यता, कुशलता दे कि मैं ऐसे जवानों की सभा में खड़े होकर प्रचार कर पाऊं। So as a kid, God gave me this vision, this dream in my life that I would be speaking in front of young people. और जब मैं बालक ही था, परमेश्वर ने मुझे ऐसा स्वप्न दिया, ऐसा दर्शन दिया कि मैं जवानों की सभाओं में प्रचार करूं। And that's what I want to talk to you guys about today, is the topic of dreams. और यही वो विषय है जो स्वप्न, मैंने जिसको शीर्षक दिया है, उसके विषय में मैं आज बातें करना चाहूंगा। If you guys are taking notes, if you want to remember, my message today is called Following Your Dreams. और यदि आप अपने संदेशों को अपनी किताबों में लिख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अपने स्वप्न का पीछा करना, उसके पीछे जाना। The thing about dreams, it's not really our dreams, it's God's dream that He has given us. यदि जो स्वप्न जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये कोई मामूली सा स्वप्न नहीं है जो आप देखते हैं, परंतु ये वो स्वप्न है जो परमेश्वर आपको देता है। And when I think of dreams, I think of dreams when you sleep. और जब मैं स्वप्न की बात करता हूँ, ये वो स्वप्न है जब आप सोते हैं और आपको ऐसा विचार आता है।
And God can speak to us through dreams when we sleep. और जब हम सोते हैं परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमसे बातें कर सकता है। But even when we're awake, even in this moment, God can speak to us and give us a dream for our life. लेकिन सोने के अलावा जब आप जागे हुए हैं, जब आप यहाँ बैठे हैं, तब भी परमेश्वर आपके भविष्य के बारे में आपको दर्शन दे सकता है। So as I go throughout my message, there's going to be 3 main points. तो जब मैं अपने संदेश को आपके सामने रखता हूँ, इसमें 3 मुख्य बिंदु होंगे। And I want you guys to think about your dream and think about how we can live out our dream in our life. और जब मैं इसके बारे में बातें करता हूँ, आप अपने स्वप्न के बारे में सोचें और इस विचार को करें कि कैसे परमेश्वर की जो स्वप्न को आप पूरा कर सकती हैं। For everybody who has their Bibles, my text today is from Genesis chapter 37. हर किसी के पास जो अपने बाइबल को लेकर आया है, आज का मेरा जो परिच्छेद है वह उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय से है। And today we're going to talk about a young man just like us, named Joseph. और हमारी समान एक जवान जिसकी बाइबल में चर्चा की गई है, यूसुफ, उसके बारे में बातें करेंगे। How many of you guys heard the story of Joseph आप में से before? कितने लोगों ने यूसुफ की कहानी को पहले सुना है? Yes, I'm going to go over the story of Joseph, but I want to get application from this story. और यूसुफ की कहानी में जाकर उसके जीवन से कुछ बातों को जो हम सीख सकते हैं, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। So if you have your Bibles, turn to Genesis chapter 37. उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय को आप खोल लें। And what I want to do is I want to highlight parts of Joseph's life. और क्या मैं करूंगा, मैं यूसुफ की जिंदगी को लेकर, उसकी जीवनी को लेकर कुछ बातों को, पहलुओं को आपके सामने उजागर करूंगा। But I want to show you where Joseph got his dream. और यूसुफ ने अपने स्वप्न को कहां से प्राप्त किया, आपको बताना चाहूंगा। Starting in verse 5. We'll start in verse 5 this morning. उसकी 5वीं आयत से हम देखेंगे। Verse 5 to 11. उत्पत्ति 37 उसके 5 से 11। One night Joseph had a dream, and when he told his brothers about it, they hated him more than ever. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया और वे उससे और भी ज्यादा दोष रखने लगे। Listen to this dream, he said. उसने कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है तो मुझे सुनो। We were out in the field tying up bundles of grain. Suddenly my bundles stood up and your bundles all gathered all around and bowed low before mine. हम लोग खेत में कूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा कूला उठकर सीधा खड़ा हो गया और तुम्हारे कूलों ने मेरे कूलों को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। His brothers responded, so you think you'll be our king, do you? Do you actually think that you'll reign over us? And they hated him all the more because of the dreams and the way he talked about them. तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसीलिए वे उसके स्वप्न को और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। Soon Joseph had another dream, and again he told his brothers about it. Listen, I had another dream, he said. The sun, the moon, and 11 stars bowed low before me. फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी योग वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। This time he told his dream to his father as well to his brothers, but his father scolded him. What kind of dream is that? He asked. Will your mother and I and your brothers actually come down and bow down to the ground before you? इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, क्या ऐसा स्वप्न है जो तुमने देखा है? क्या सचमुच मैं और मेरी माता और तेरे सारे भाई जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर तुझे दंडवत करेंगे? But while his brothers were jealous of Joseph, his father wondered what the dreams meant. 11वीं आयत, उसके भाई उससे दाह करते थे पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। What I want to do this morning is I want to give you 3 points of application. आज की सुबह आपके जीवनों में लागू करने के लिए यूसुफ के जीवनी से 3 बातों को मैं देना चाहूंगा। And we're going to look at Joseph's life and we're going to see that there's 3 types of challenges when we follow our dream. और यूसुफ की जिंदगी को देखकर जब अपने स्वप्नों के पीछे हम जाने का प्रयास करते हैं, आपके सामने 3 चुनौतियां आ सकती है। And I want to show you that there are 3 responses.
3 ways Joseph reacted to the problems that came in his life. और 3 चुनौतियों को देखकर उसके 3 तरीके से आप प्रत्युत्तर दे सकते हैं। जैसे यूसुफ ने अपनी जिंदगी में आने वाली 3 चुनौतियों के लिए प्रत्युत्तर दिया, हम उन 3 बातों को सीखेंगे। And at the end of my message, I have one more story to tell you that's going to tie it all together. और इस संदेश के अंत में एक और कहानी मेरे पास है जो आपको बताऊंगा, जिसके द्वारा यह पूरे संदेश का वह समापन होगा। And Joseph had some hard times come into his life. अब देखते हैं यूसुफ के जीवन में कुछ मुश्किलातों की घड़ी उसके सामने आती है। His brothers were so jealous of Joseph that they plotted to kill him. और उसके भाई उससे इतना ज्यादा द्वेष करने लगते हैं कि उसे मारने का प्रयास करते हैं। And I want to highlight this story now so you can see the picture of Joseph's life. और उस कहानी को मैं थोड़ा उजागर आपके सामने करना चाहूंगा ताकि आप उसके जिंदगी के इस पहलू को समझ पाएं। The first thing is the brothers sold Joseph into slavery. सबसे पहली बात, यूसुफ के भाइयों ने उसे बंधुआ बनाकर उसे बेच दिया। It's a long story, but I've shortened it just to say his brothers sold him into slavery. ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन समय बचाने के लिए मैंने केवल एक ही कथन में आपको बता दिया। उसके भाइयों ने उसे बंधुआ होने के लिए बेच दिया। I mean, how many of you guys have brothers and sisters? आप में से कितनों के पास अपने भाई और बहन हैं? Oh yeah, oh everybody's got brothers and sisters. अधिकतर लोगों के पास भाई और बहन हैं। So we can put ourselves in this story. तो हम अपने आप को इस स्थान में, इस कहानी में रख सकते हैं। I have 2 brothers. मेरे पास 2 भाई हैं My brothers are Matthew and Mark. और मेरे भाइयों का नाम मैथ्यू और मार्क है। And if my little brother Mark came up to me and said he had a dream like this, और यदि मेरा भाई मार्क मुझसे आकर कहता और मुझसे ऐसा बताता कि मेरे पास भी ऐसा स्वप्न है, I don't know what I would say. मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँगा। Because it's a crazy story because there's no way that the brothers would bow down to Joseph right now. क्योंकि इस कहानी में जो आप पढ़ते हैं, हम देखते हैं भाई कभी भी अपने छोटे भाई के सामने दंडवत नहीं करेंगे। Right now his dream hasn't come true. अब देखिए, अब तक उसका स्वप्न पूरा नहीं हुआ है। But right now we will see it will be a long-term thing. A dream is a long-term deal with God. लेकिन अब हम देखेंगे, यहाँ स्वप्न देखने के बाद लंबे समय के बाद परमेश्वर उस स्वप्न को पूरा करता है। And Joseph had to go through many challenges to bring this about. और उस स्वप्न को पूरा करने के लिए यूसुफ को बहुत सी चुनौतियों से होकर जाना पड़ता है। And the first thing is he was sold into slavery by his brothers. सबसे पहली बात, उसके अपने खुद के भाइयों के द्वारा उसे दास होने के लिए बेच दिया गया। And this is my first point of my first point of challenge for today. और 3 चुनौतियों में से आज की सुबह में यह पहली चुनौती है जो आपके सामने मैंने रखा। This is the first type of challenge. यह सबसे पहले प्रकार की चुनौती है। The first challenge is people might not like your dream. और वो पहली बात है, हो सकता है लोग आपके स्वप्न को पसंद ना करें। People will try to discourage you and stop your dream. और लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आपको हतोत्साहित कर दे, आपके स्वप्न को पूरा होने से रोक दें। And this is a part of my testimony as well. और यह मेरी गवाही का एक भाग भी है। When I was in high school, when I was 17, 18, around a teenager, जब मैं 17-18 साल का ही था, हाई स्कूल में पढ़ता था, my main sport was basketball. और मेरा सबसे मुख्य खेल जो मुझे पसंद था वह बास्केटबॉल था। How many of you guys play sports? आप में से कितने लोगों को खेल खेलना पसंद है? Pastor Dr. Thomas plays sports, he said. डॉक्टर थॉमस ने हाथ उठाया, कहते हैं वो खेल खेलते हैं। I'm gonna have to play him in basketball. मुझे लगता Oh, soccer. Oh, okay, we'll play soccer. Okay, good. But now, for me, basketball was everything. लेकिन अपनी बात करूं तो उस उम्र में मेरे बास्केटबॉल मेरे लिए सब कुछ था। And if I was playing good at basketball, I was happy. और यदि मैं बास्केटबॉल में अच्छा प्रदर्शन करता, मैं खुश हो जाता था। If people would look at me and say, "Wow, Luke's a good basketball player," I was happy. जब लोग मुझे देखकर कहते, अरे लूक तो बहुत अच्छा बास्केटबॉल खेलते हैं, मैं बहुत ही खुश हो जाता था। And the second thing that I put my identity was being funny. और दूसरी बात, ये पहले मेरे परिचय का कारण था, दूसरा मेरा परिचय का कारण था कि मैं बहुत ही मजाकिया था। In class, wherever I was at, I would live so that I could get someone to laugh at me. और जब मैं कक्षा की बात करें, मैं जहाँ कहीं भी पाया जाता, मैं कुछ ऐसा काम करता कि लोग मुझ पर हंसते। I would try so hard to get people to like me. मैं पूरा प्रयास करता कि लोग मुझे देखकर हंसे। And I hope I'm speaking to someone when I say this. और मैं ऐसा एहसास को जब इन बातों को मैं बता रहा हूँ, कोई है ऐसा जो इस बात को समझ रहा है। My basketball career did not go far. My basketball career did not go that far. और मेरा बास्केटबॉल का जो कैरियर था, जो मेरा पेशा था, वो उतना दूर तक नहीं गया। I'm not playing in the National Basketball Association. और जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, मैं उसमें खेलने के लिए नहीं गया।
That was not God's dream for my life. और परमेश्वर के लिए ये मेरी जिंदगी के लिए जो स्वप्न था बास्केटबॉल खेलना नहीं था। And I'm not standing up here as a comedian. I'm not a comedian. और यहाँ पर एक मजाकिया या फिर एक हंसाने वाले के रूप में मैं खड़ा नहीं हूँ। I remember at a youth conference, a different youth conference, God spoke to me so clearly. और एक और जवानों की ऐसी सभा में जब मैं गया, मुझे याद आता है परमेश्वर ने मुझे बड़ी स्पष्टता के साथ इन बातों को कहा। I want to show you the three words that God gave me for my life. 3 शब्द जो परमेश्वर ने मुझे दिए मेरी जिंदगी के लिए आपके साथ साझा करना चाहूंगा। He said, "It doesn't matter." उन्होंने कहा इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई परवाह नहीं पड़ता। It doesn't matter what people think. लोग क्या सोचते हैं परवाह नहीं पड़ता। He's telling me, Luke, care about what I think. वो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ, मैंने क्या रख छोड़ा है, तुम उसकी परवाह करो। Don't worry about what other people want you to be. दूसरे लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं, आपको कैसा देखना चाहता है, चिंता मत करो। Worry about who I've called you to be and the dream I've given you for your life. तुम हमेशा इस बात को याद रखो कि मैंने तुम्हें कौन सा स्वप्न दिया है और तुम्हें क्या बनने के लिए बुलाया है। And I'm praying that I'm speaking to someone this morning. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि यहाँ पर आप में से हर एक है जिनसे मैं बातें कर रहा हूँ। Don't worry if people like you. और यदि लोग आपको पसंद ना करें, आप उनकी परवाह ना करें। Remember, the God of the universe loves you. आप याद रखिए पूरी दुनिया का जो सृष्टि करता है परमेश्वर है, वो आपसे प्रेम करता है। I feel like someone needed to hear that this morning. मुझे लगता है कि हम में से हर एक को इस बात को आज सुनना है। So that's the first challenge. People are not going to like our dream. ये पहली चुनौती है कि लोग आपके स्वप्न को नापसंद करेंगे। Especially if we're going to follow Jesus and we're living for God. The world thinks it's crazy. विशेषकर जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, अपने स्वप्न को पूरा करेंगे, लोग आपको देखकर सोचेंगे ये पागल हो गया है। But if we're living for God, it's the best life possible. लेकिन यदि आप परमेश्वर के लिए जिंदगी को जीते हैं, आप सर्वोत्तम जीवन का व्यापन कर सकते हैं। So how did Joseph respond to being sold into slavery? तो अब यूसुफ जब उसे दास होने के लिए बेच दिया गया, उसने क्या किया? In the story, we see that he was put in Potiphar's house. आप देखते हैं उसे पोतीफर के घर में डाल दिया गया। So this is the first point of application. Joseph worked hard. तो सबसे पहला जो विनियोग या अपने जीवन में लागू करने की बात है, वो यूसुफ के जीवन से देख सकते हैं। उसने कड़ा परिश्रम किया। Joseph worked hard at his dream. उसने अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए कड़ी परिश्रम किया। Wherever Joseph was at in his life, he worked hard. He worked the best of his ability to glorify God. जहां कहीं भी यूसुफ किया, वो अपने स्वप्न जो परमेश्वर ने उसे दिया, उसे पूरा करने के लिए उसने बड़ी परिश्रम की। And if we're going to be living for God and doing His purposes, we have to work as hard as we can. यदि हम भी परमेश्वर के सपने को पूरा करना चाहते हैं, उसकी महिमा के लिए जीना चाहते हैं, हमें भी कड़ी मेहनत करनी होगी। That's why I'm so proud of you guys for taking the time to make this conference look great. इसलिए मैं आपकी बड़ी सराहना करता हूं कि आपने अपने समय को निकालकर परिश्रम के साथ इस सुंदर इस सम्मेलन का आपने आयोजन किया। We have to give God our best and our most excellence. अपना सर्वोत्तम जो उत्कृष्ट हमारे पास है, हमें उसे परमेश्वर को देना है, Because He deserves it. क्योंकि वह उसकी योग्य है। Amen? आमीन। Second thing that happened in Joseph's life. This is the second challenge that came into Joseph's life. दूसरी चुनौती जो हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, Joseph was falsely accused of having an affair with Potiphar's wife. और यूसुफ के ऊपर यदि आप देखें, ऐसा दोष लगाया गया, झूठा दोष लगाया गया कि उसने पोतीफर की पत्नी के साथ गलत संबंध बनाए। Joseph was working hard in the house. He was doing what he was called to do. अब देखिए यूसुफ उस महल में पोतीफर की बड़ी परिश्रम कर रहा है, जो काम उसे करने को दिया गया विश्वास योग्यता के साथ कर रहा है, लेकिन अब उस पर दोष लगाया गया। And it says in Scripture that Potiphar's wife noticed that Joseph was handsome and looked lustfully at Joseph. अब बाइबल ये बताती है कि पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को देखा और उसे आकर्षित लगा और उसने उसके अंदर अपने मन में अभिलाषा को उत्पन्न किया और गलत रिश्ता बनाने का प्रयास किया। And one day Joseph is all alone in the house and he's working hard. अब देखिए एक दिन यूसुफ घर में अकेला है, कड़ी परिश्रम कर रहा है, And all of a sudden Potiphar's wife comes up and grabs him by the cloak. और अचानक से पोतीफर की पत्नी उसके पास आकर उसके वस्त्र को पकड़ लेती है She says, "Come lie with me." और कहता है कि तुम आओ मेरे साथ सो। But he says, "No." लेकिन यूसुफ कहता है नहीं। He says, "No, my pastor has put me in
charge of everything in this house. और फिर यूसुफ कहता है मेरे स्वामी ने मुझे इस घर में हर बातों के ऊपर मुझे जिम्मेदार ठहराया है। How can I do this evil act against God? और मैं परमेश्वर के विरुद्ध में इतने बड़े पाप को कैसे करूं? And he runs out of the house without his cloak. और फिर अपने कपड़े को वहीं छोड़कर वो घर से बाहर भाग जाता है। And when Potiphar comes home, और जब वो पोतीफर महल में वापस आता है, he comes home with Joseph's cloak in his wife's hand. और जैसे ही वो घर में महल में प्रवेश करता है, उसकी पत्नी के पास यूसुफ का वस्त्र रखा है। And he asks his wife, what happened? अपनी पत्नी से पूछता है क्या हुआ? And she said, that slave, that Joseph guy tried to sleep with me. और फिर वो कहती है कि झूठ बोलती है कि यूसुफ वह जो गुलाम जिसे तुमने लाया है वह मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। And so she lied about Joseph. और फिर यूसुफ के विषय में उसने झूठ बोला। And because of that, he was sent to prison और झूठ बोलने के कारण उसे बंदी गृह में डाल दिया गया। for something he never did. और ऐसी काम के लिए जो उसने कभी नहीं किया। And I don't know what's going through Joseph's mind right now. और अब ऐसी घड़ी में यूसुफ के मन में क्या चल रहा है मुझे तो नहीं पता। As he's sitting there in jail, he's thinking about everything that happened. जब बंदी गृह में बैठा था जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बारे में विचार कर रहा है। And the second challenge, when challenges come our way, is we have the opportunity to doubt God. और दूसरी चुनौती जो हमारे सामने आती है कि आपके पास ऐसा समय आएगा, ऐसा मौका आपके सामने आएगा कि आप परमेश्वर पर ही संदेह करना शुरू कर देंगे। And so the first thing is, people are not going to like us. सबसे पहली बात हमें देखी चुनौती कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। People may try to stop our dream. और लोग प्रयास करेंगे कि अपने स्वप्न को पूरा होने से रोक दें। When we learned from Joseph's life that we have to work hard. और फिर यूसुफ के जीवन से हमने देखा हमें उसे पूरा करने के लिए कड़ी परिश्रम करनी है। Now we're learning that even if we don't understand the circumstances, लेकिन अब हम इस बात को सीख रहे हैं कि भले हमें परिस्थिति समझ में ना आए क्या हो रहा है। this is the second application. यह दूसरा विनियोग है। We have to trust God. हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। If God has given you a dream, God's going to be faithful in your life. यदि परमेश्वर ने आपको स्वप्न दिया है वो उसके प्रति वफादार बना रहेगा। He's going to bring the dream about. It's going to happen. वह स्वप्न को पूरा करेगा, निश्चित रूप से ये होकर रहेगा। And even if you don't understand the circumstances, we still need to trust God. भले ही आप परिस्थितियों को ना समझ पाए लेकिन आपको परमेश्वर पर भरोसा रखना है। Are you guys ready for a difficult question that people ask? क्या आप उन मुश्किल प्रश्नों के तैयार हैं जो हमेशा लोग आपसे आकर पूछते हैं? I'm going to answer a difficult question that young people ask. और एक मुश्किल प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा जो हमेशा जवान आकर मुझसे पूछते हैं। And not only just young people, I think everybody in the world is asking this question. ना केवल जवान लेकिन यदि अपन गौर करें दुनिया भर में हर एक व्यक्ति यही प्रश्न पूछ रहा है। And we have to answer this question if we're going to trust God with our life. यदि हम अपनी पूरी जिंदगी में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहते हैं इस प्रश्न को पूछना जरूरी है। Many people ask, if there is a good God, then why does He let bad things happen to us? ये प्रश्न बहुत ही आम है। ये इस प्रकार से यदि परमेश्वर भला परमेश्वर है तो बुरी बातों को होने की अनुमति वो क्यों देता है? If God is so good, then why does He let things happen to us that we don't like? यदि परमेश्वर पूर्णतः भला परमेश्वर है, वो अच्छा परमेश्वर है, तो हमारी जिंदगी में बुरी बातें क्यों होती हैं? I'm going to try to help you comprehend this question better. और इस प्रश्न को बेहतर रूप से समझने के लिए, समझाने के लिए आप अपने जीवन में जान पाने का प्रयास करूंगा। I'm going to help you understand or answer the question, help you understand it better. कि आप इस प्रश्न को बेहतर रूप से समझकर इसका उत्तर आप दे पाएं, मैं इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। But if I'm going to answer this question, I have to go to the very beginning of the Bible. लेकिन यदि इस प्रश्न का उत्तर हम देखना चाहते हैं हमें बाइबल के शुरुआती दौर में आना पड़ेगा। If you guys have read your Bible, in the beginning, everything was good. और यदि आप बाइबल पढ़े होंगे आपको मालूम होगा जब परमेश्वर ने सारी बातों की सृष्टि की उसने कहा सब कुछ ठीक है, अच्छा है। Sometimes we're looking for an easy life from God. कई बार तो हम परमेश्वर की ओर देखते हैं और चाहते हैं बहुत ही सरल जीवन हमें दे दे। But in the Garden of Eden, they had everything they need. Everything was good. लेकिन अदन की वाटिका में यदि आप गौर फरमाएं सारी बातें वहाँ अच्छी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। They could eat from any tree from the garden except for one. जिस किसी वृक्ष के फल से वो चाहे वो खा सकते थे, केवल एक वृक्ष के लिए परमेश्वर ने मना किया था। Sorry, thank you. Anyway, I didn't see that. But in the garden, they had one command: don't eat the tree of the garden of knowledge of good and evil. और आप देख सकते हैं परमेश्वर ने कहा अदन की वाटिका में सारे वृक्षों के फलों से तुम खा सकते हो, जो चाहे तुम ले सकते हो, लेकिन एक वृक्ष एक पेड़ के फल को मत खा। What did they do? They ate of the fruit anyway. और देखिए वो उसे भूल गए और खा लिया।
And so what happened is sin has come into the world. अब देखिए उसके नतीजे में पाप इस दुनिया में प्रवेश कर गया। The world is no longer perfect. अब देखिए दुनिया अब सिद्ध नहीं है, अब वो भली नहीं है। Romans 3 talks about how no one is righteous, not even one. बाइबल बताती है कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। No matter how good we think we are, we're not good enough. परवाह नहीं पड़ता आप अपने आप को कितना बेहतर सोचें, आपको कितना लगे आप अच्छे हैं, आप पाप में हैं, आप अधर्मी हैं। And we have to remember that the world we live in today is a world of sin and evil. आपको ये बात जानना है कि जिस दुनिया में आप आज जी रहे हैं वह पाप से भरा हुआ है, वह बुराइयों से भरा हुआ है। I want to give you guys an analogy today, an illustration. एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा आज की सुबह में। How many of you guys ever been on a roller coaster? आप में से कितने लोग रोलर कोस्टर जो बहुत बड़ा झूला होता है, Anybody on a roller coaster? आप में से कितने लोग वो बड़े रोलर कोस्टर झूले में आप जा चुके हैं? How many of you guys seen a roller coaster before? आप में से कितने लोगों ने रोलर कोस्टर देखा है? You guys know what I'm talking about? It's a big thing that just goes up and down. It's a big ride. ये बहुत बड़ा एक सांप के समान लंबा झूला होता है जो पटरी पर ऊपर नीचे आगे पीछे घूमता है। And I'm telling you right now, life is like a roller coaster. और आपकी जो जिंदगी है वह उस रोलर कोस्टर के समान ही है। We have our ups and we have our downs. उसमें ऊंचाई में आप जाते हैं, फिर आप निचले सतहों पर भी जाते हैं। And in life, you're going to have your ups and you're going to have your downs. और आपकी जिंदगी में भी इस प्रकार से ऊंचाई और नीचाई आती है। Joseph definitely had his ups and downs. और आप यूसुफ के जीवन में देख सकते हैं उसके भी जीवन में ऊंचाई और नीचाई आई। And as we're sitting in the roller coaster of life, we have two options. और जब हम जिंदगी की इस रोलर कोस्टर में बैठे होते हैं, दो विकल्प हमारे सामने होता है। You can sit in the roller coaster of life. You can be anxious, you can be scared, and you can question God. और जब आप जिंदगी की इस रोलर कोस्टर में बैठे होते हैं, आपके सामने प्रश्न आ सकता है, आपके सामने चुनौती आ सकती है, आप परमेश्वर पर संदेह भी कर सकते हैं। That's the first option. ये पहला विकल्प है। Or may I suggest the second option? और यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं दूसरे विकल्प को कहना चाहूंगा। We can sit back, we can relax, and we can trust God and enjoy the ride. और इन मुश्किलातों के समय में हम शांति से बैठ सकते हैं, परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं और उसके कार्यों के होने के लिए इंतजार कर सकते हैं। How many of you guys want to enjoy the ride of life? आप में से कितने लोग जिंदगी की इस यात्रा का आनंद उठाना चाहते हैं? If we're going to do what God's called to, amen. If we're going to do what God's called us to do, first of all, we have to work hard and then we have to trust God. यदि हम परमेश्वर की योजना को पूरा करना चाहते हैं, सपने को पूरा करना चाहते हैं, दो काम आपको करना है। सबसे पहले आपको परमेश्वर का भरोसा रखना है और उसके कार्यों के होने के लिए उसका इंतजार करना है। And I'm not going to stand here in the pulpit and act like I know what God does and how He works. और यहाँ पर फिर खड़े होकर मैं इस बात का दावा नहीं करना चाहता कि परमेश्वर कैसे काम करता है, वो क्या करता है, मुझे सब कुछ मालूम है। I don't know all His ways. परमेश्वर के मार्गों के बारे में मुझे नहीं पता। And I don't always know the truth is I don't always know why God does what He does in the moment. और अधिकतर समय में यदि आप मुझसे पूछें परमेश्वर अपनी योजना कैसे पूरा करता है, वो कैसे कार्यों को पूरा करता है, मुझे इसके विषय में बातें नहीं पता। But I have learned that everything will work out for a good purpose. एक बात मैंने सीखा है, जो कुछ भी परमेश्वर करता है वह अंततः भलाई को उत्पन्न करती है। And I'm going to tell you guys a story real fast. अब बहुत जल्दी मैं आपको एक कहानी बताना चाहूँगा। When I first got here to Itarsi, everything was good. जब मैं पहली बार इटारसी में आया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। I was excited. I was working with the kids. और मैं बहुत उत्साहित था, बच्चों के साथ मैं खेल रहा था। We were playing games and we were having a good time. और अलग-अलग खेलों को हम साथ में खेलकर हम मजा ले रहे थे। And I don't know why this had to happen, but I got sick. अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ, अचानक से मैं बीमार पड़ गया। And when that challenge came into my life, I had the two options. जब ये चुनौती मेरे सामने आई, मेरे पास दो विकल्प रह गए थे। I could have just laid in bed and been like, "Oh God, why did you let this happen?" और यदि मैं चाहता तो अपने बिछौने पर, अपने बिस्तर पर पड़ा होता और परमेश्वर से प्रश्न करता कि ऐसा क्यों हुआ मेरे जीवन में? God, don't you know that I have an appointment with the youth Friday? I have to speak. परमेश्वर क्या आपको नहीं पता? मुझे शनिवार की जवानों की सभा में मुझे प्रचार करना है। Trust me, God knows I had to speak. भरोसा करें, परमेश्वर को बेहतर रूप से मालूम है कि मुझे शनिवार को प्रचार करना है। God wasn't worried about my sickness. परमेश्वर में बीमारी के विषय में चिंतित नहीं था। And I wasn't either. और ना ही मैं चिंतित था। I'm telling you right now, it's hard, but I practice what I preach.
लेकिन आपसे कहना चाहूंगा ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं जो प्रचार करता हूँ मैं उसका अभ्यास भी करता हूँ, मेरे जीवन से उसे पूरा करता हूँ। I'm telling you, it wasn't easy though. आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्या ये मेरे लिए आसान था? Grandpa remembers this. I remember I was just crying out to God. I was literally crying. Tears were rolling down my मेरे face. दादा यहाँ पर हैं, वो इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि मेरे आंखों से आंसू निकल रही थी, मैं रो रो कर प्रार्थना कर रहा था Because I was so sick and I just wanted God to heal me. I wanted to be able to preach. क्योंकि मैं इतना बीमार था, मेरी तबीयत इतनी खराब थी, मैं रो रहा था, मुझे सभा में प्रचार करना है, मैं रो कर प्रार्थना कर रहा था। I was sad because I was afraid I was going to miss this opportunity to speak. और मैं थोड़ा डर भी गया कि इतना सुंदर जो मौका मेरे सामने प्रचार करने का है कि मैं इसे गवा ना दूं। But God healed me. लेकिन परमेश्वर ने मुझे चंगा किया And I'm here today because He healed me. और जबकि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, आज मैं आपके मध्य खड़ा हूँ। Whatever challenge you have in your life in following your dream for God, He's going to bring it through. परमेश्वर के द्वारा दिए गए स्वप्न को पूरा करने के लिए जो भी चुनौती का सामना आप क्यों ना करें, परमेश्वर उसका समाधान देकर आएगा। We just got to trust Him. Amen? हमें केवल परमेश्वर पर भरोसा करना है। आमीन। Now, this is a famous verse. It's Romans 8:28. रोमियो की पत्री 8:28 जो बहुत ही सुप्रसिद्ध आयत है। And Romans 8:28 is a popular verse, but I'm going to look at it closely. रोमी 8:28 जो बहुत ही सुपरिचित है, उसे अब थोड़ा करीबी से आज देखेंगे। And it says, and we know that all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. यहाँ पर लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। I can't stand here in the pulpit and preach that if you do your own thing and you don't live for God, everything's going to work out for good. मैं आज यहाँ पर खड़े होकर इस बात को कहना नहीं चाहता, इस बात का प्रचार नहीं करना चाहता कि आप अपने मन से जैसा आप जीना चाहें आप जी सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कर पाएंगे, ये बात मैं नहीं कहना चाहता। I can't say that in the pulpit. और वेदी से, मंच से मैं इस बात को नहीं कह सकता, Because that's not what it says. क्योंकि यहाँ पर वो बात नहीं लिखी गई है। There's two criteria for if everything's going to work out for our life. और यदि आप जिंदगी में परमेश्वर की सारी बातों को पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए दो मापदंड हैं। And what this verse is saying at the end, it says, for all those who love God, verse 1, and are called according to His purpose. अंततः आप देखेंगे दो बातें लिखी गई है। पहले वो जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, दूसरी बात जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। I'm telling you right now, you guys are called for a purpose. मैं अभी कहना चाहूंगा आप में से हर एक के साथ कि आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया गया है। I'm telling you right now, God has a dream for your life. बताना चाहूंगा परमेश्वर के पास आपके लिए, आपके भविष्य के लिए स्वप्न है। But do you love God? लेकिन क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? And are you living in that purpose for your life? क्या आप उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जी रहे हैं? Or are you saying, God, I'll do that later. I want to do my own thing now. या क्या आप ये कह रहे हैं कि मुझे वो काम बाद में करना है, मैं अपने काम को भी करना चाहता हूँ? See, it doesn't work like that. ये इस प्रकार से नहीं किया जाता। If we want everything to work out in the end, यदि आप चाहते हैं सारी बातें अंत में भलाई को उत्पन्न करें, we have to love God and we have to live in His purpose for our life. हमें परमेश्वर से प्रेम करना है और उसके उद्देश्यों को अपने जीवन से पूरा करना है। I hope you guys are getting this point. आशा करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। We need to live for God and trust Him for our life. हमें परमेश्वर के लिए जीना है और अपनी जिंदगी की हर एक बात के लिए केवल उस पर ही भरोसा रखना है। So people might not like us. They might not like our dream. तो हो सकता है पर लोग आपको पसंद ना करें, आपके स्वप्न को वो ठीक ना समझें। It doesn't matter. It doesn't matter. You have to work hard for your dream. परवाह नहीं पड़ता ये लोग क्या आपके बारे में सोचते हैं, आपको अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए कड़ी परिश्रम करना है। There's going to be opportunities to question God and why He does things in our life. और आपके सामने ऐसा मौका भी आएगा कि आप परमेश्वर से प्रश्न करें, उससे पूछें, संदेह करें कि ये सब मेरी जिंदगी में क्यों हो रहा है। But our response should be we should trust God. लेकिन हमारा प्रत्युत्तर हमेशा यही होना चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। I have a quote for you guys today. The quote is, we have to work like it depends on us and pray like it depends on God. और एक कथन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा जो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही सुचारू है। हमें ऐसा काम करना चाहिए ये समझकर कि सारी बातें हम पर निर्भर है, लेकिन प्रार्थना ऐसा करना चाहिए ये सोचकर कि सारी बातें परमेश्वर पर निर्भर है। I'm going to repeat that. फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, We have to work like it depends on us. आप काम ऐसे करें, कार्य ऐसे करें कि जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है,
And then we have to remember to pray like it depends on God. लेकिन आपको प्रार्थना ऐसा करना है मानो सारी बातें परमेश्वर पर निर्भर है। It's a twofold process. यह दो पूर्ण अपने आप में पद्धतियां हैं। We work hard in what God calls us to do, and then He will, if we trust Him, He will launch us into our dream. पहली बात जो परमेश्वर ने जो करने के लिए बुलाया है उसे हम पूरी शक्ति से करते हैं और फिर परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम उन बातों को पूरा कर पाए। I hope you understand these first 2 points as I'm moving on to the third. आशा करता हूँ कि ये दो बातें आपको समझ में आ चुकी है और अब हम तीसरी बात की ओर जाएंगे। But my third point is this: मेरा तीसरा बिंदु इस प्रकार से है, your dream will take time. आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए समय लगेगा। Let's pick up the story of Joseph. आइए हम यूसुफ की इस कहानी को ले लें। Joseph actually works hard in prison, and he has an opportunity to get out of prison. अब देखिए यूसुफ जब बंदी गृह में डाल दिया गया उसने वहां पर कड़ी मेहनत की और उसे ऐसा मौका भी मिला कि वह अपने आप को बंदी गृह से बाहर कर ले। And he has to interpret Pharaoh's dreams that he had. और फिर आप उसे मौका मिलता है कि फिरौन ने जो स्वप्न देखा है उसे वो परिभाषित करे, उसकी व्याख्या करे। And I know you guys know the story. He was able to interpret the dreams, and he was put into second command of all Egypt next to Pharaoh. अब देख सकते हैं वह बाहर आता है, फिरौन के स्वप्न का व्याख्या करता है और उसके द्वारा उसे पूरे देश के जो फिरौन के बाद का दूसरा दर्जा है शासन का उसे मिल जाता है। He was governor of all of Egypt. वह पूरे मिस्र का गवर्नर बन जाता है। And so let's go back to the dreams that Joseph had. अब देखिए फिर से जो स्वप्न यूसुफ ने देखा हम उसमें जाएं। Where does Joseph's dreams come to pass in the story? अब देखिए इस पूरी कहानी में कहां पर यूसुफ का स्वप्न पूरा होते हुए हम देखते हैं। If you have your Bibles, turn to Genesis 42 verse 6. यदि आपके बाइबल है तो उत्पत्ति 42 उसके 6वें आयत में आ जाएं। I just want to read this one verse that talks about his dream coming true. और उत्पत्ति 42 के 6 को हम पढ़ेंगे जहां पर हम देखते हैं पहली बार उसके स्वप्न को पूरे होते हुए। It says, since Joseph was governor of all of Egypt and in charge of selling grain to the people, it was to him that his brothers came. When they arrived, they bowed down to him with their faces to the ground. अब देखिए 42 की 6 उत्पत्ति में क्या लिखा है। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोग के हाथ वह अन्न बेचता था, इसीलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। And then it was at that moment that Joseph's dreams came true. अब देखिए ये वही घड़ी है जहां पर यूसुफ का स्वप्न जो उसने काफी पहले देखा था पूरा होता है। But the question is this: did Joseph have to go through all that he went through to achieve his dream? लेकिन अब देखिए इस स्वप्न को पूरा करने के लिए यूसुफ को उन सारी बातों से चुनौतियों से होकर जाना पड़ा जिससे वो होकर गया। Do you remember the roller coaster? आपको रोलर कोस्टर याद है, वो बड़ा झूला। So Joseph's first thing, he was sold into slavery by his brothers. अब देखिए पहली बात यूसुफ को उसके अपने भाइयों के द्वारा बंधुआ होने के लिए बेच दिया गया। He had the opportunity to question God and be like, God, why did this happen? अब उसके सामने ऐसा उपलक्ष्य आया, ऐसा मौका आया कि वो परमेश्वर पर संदेह करे, उससे प्रश्न पूछे। But he worked hard and he trusted God and he was in it for the long haul. लेकिन बजाय प्रश्न करने की, परमेश्वर संदेह करने की, उसने परमेश्वर विश्वास किया, कड़ी मेहनत की और इत्मीनान रखा कि परमेश्वर सपने को पूरा करेगा। Joseph was faithful, and so God was faithful to him, and He put him in charge of Potiphar's house. जबकि यूसुफ परमेश्वर के प्रति वफादार बना रहा, परमेश्वर उसके प्रति वफादार बना रहा, पोतीफर के घर पर सारी बातों के ऊपर उसे अधिकारी बना दिया गया। So the roller coaster goes back up, but then it goes back down because he's put into prison. अब देखिए रोलर कोस्टर वो ऊपर जाता है इतना बड़ा झूला, लेकिन जब उसे बंदी गृह में डाल दिया गया अब वह झूला नीचे आ गया। And he's in prison and he works hard, he trusts God and he's in charge of the prison. अब देखिए जब वो बंदी गृह में है, कड़ी मेहनत करता है, परमेश्वर पर भरोसा करता है। And you could say famine came to the land, but that was his opportunity to go to his dream. लेकिन आप देखिए जब उसके परिवार वाले उसके भूमि पर आए, उससे मिलने के लिए आए, अब वह नीचे उस झूले के द्वारा अब वह फिर से ऊपर जाता है। And so I think the answer to the question, did Joseph have to go through all that he went through, is yes. अब देखिए यदि आपको से प्रश्न करें क्या सचमुच यूसुफ को उन सारी बातों से जाना जरूरी था जिससे वो होकर गया, जिसके द्वारा सपने को पूरा करे, तो मेरा उत्तर होगा हाँ, उसे उन सारी बातों से होकर जाना अनिवार्य था। Let's suppose some things happened differently in the story. आइए थोड़ी कल्पना करें और ऐसा सोचें कि अगर इस कहानी में बातें थोड़ी भिन्न रूप से होती तो क्या होता। If Joseph never went to Egypt, he would have never been in Potiphar's house. मान लीजिए यदि
ये यूसुफ मिस्र में कभी जाता ही नहीं, या उसे पोतीफर घर में कार्य के लिए रखा नहीं जाता। If Joseph was never falsely accused, he would have never went into the prison. और यदि यूसुफ को गलत रूप से उस पर दोष नहीं लगाया जाता और तो कभी बंदी गृह में भी वो नहीं जाता। And if he never went to the prison, his ability to interpret dreams would have never been known. और यदि वो बंदी गृह में नहीं जाता तो उसका जो काबिलियत परमेश्वर जो उसे वरदान दिया था स्वप्न की व्याख्या करने की, वो भी वो नहीं कर पाता। Notice that God positioned Joseph at the right moment, at the right time, with the right people to achieve his dream. अब देखिए परमेश्वर उसके स्वप्न को पूरा करने के लिए उसके जीवन में सही स्थान पर, सही समय पर, सही लोगों से उसे मिलाया ताकि वो अपने स्वप्न को पूरा कर पाए। And I have a few more minutes left, and I want to tell you guys one more story. थोड़े और मिनट मेरे पास रह गए हैं, एक और कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा। I love this story. मुझे कहानियां बहुत पसंद है। It's a story about Benaiah. ये बनाया के विषय में कहानी है। If you have your Bibles, can you turn with me to 1 Chronicles 11:22? पहले इतिहास की पुस्तक 11 का 22 आप खोल दें। 1 Chronicles 11:22. पहला इतिहास 11 इसका 22। And Benaiah was a part of David's army. अब देखिए जो बनाया था वह दाऊद की सेना का एक सैनिक था। Benaiah was a part of his team. अब जो बनाया था वो अपने दल का एक सदस्य था। Benaiah was a warrior. अब देखिए बनाया एक योद्धा था। And I pictured Benaiah with big muscles. अब जब मैं बनाया की कल्पना करता हूँ कि वो एक योद्धा है, एक सैनिक है, तो वो बहुत अच्छी मांसपेशियों वाला, एक अच्छा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति रखा होगा। Big muscles and a big beard. एक बड़ी दाढ़ी और अच्छी मांसपेशियों वाला व्यक्ति, Big muscles, big beard, and a big sword. और एक बड़ा तलवार, बड़ी दाढ़ी और भारी भरकम शरीर, Because he's a warrior. क्योंकि ये योद्धा है। He looks nothing like me. वो मेरे समान तो नहीं दिखाई दे रहा था। I don't have the beard right now. मेरे पास दाढ़ी नहीं है I didn't bring my sword with me. और ना ही मेरा तलवार मेरे साथ है। But what I want to look at is this little description they have of Benaiah in the Bible. लेकिन देखिए बाइबल में थोड़ा सा जो बनाया के विषय में व्याख्या दिया गया है, हम उस पर गौर करेंगे। So if you look at 1 Chronicles 11:22, पहले इतिहास की पुस्तक 11वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में यदि आप देखें, it reads, Benaiah, son of Jehoiada, a valiant warrior from Kabzeel, performed great exploits. He had struck down Moab's 2 mightiest warriors. He also went down into a pit on a snowy day and killed a lion. यहाँ जो लिखा है, यहोयादा का पुत्र बनाया था जो कब्जेल के एक वीर का पुत्र था, जिसने बड़े बड़े काम किए थे। उसने सिंह के समान 2 मोआबियों को मार डाला और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में उतर के सिंह को भी मार डाला। Let me read the last part one more time. और अंतिम भाग को फिर से एक बार पढ़ना चाहेंगे, Because this is where I want to focus the message to close. और यही जो बात है जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा, अपने संदेश को समाप्त करूंगा। Benaiah went down into a pit on a snowy day and killed a lion. और हिम ऋतु में उसने एक गड्ढे में जाकर सिंह को भी मार डाला। Each of these parts of the story, the lion, the pit, and the snowy day represent 3 different things. अब देखिए यहाँ पर जो हिम ऋतु है, जो गड्ढा है और जो सिंह है, ये तीनों बातें 3 अलग-अलग बातों की ओर इंगित करती है। And if you have notes or if you have your Bible, I want you to write down the word that each of these represent. यदि आपके नोट्स आपके पास हैं, बाइबल आपके पास है, आप इन 3 बातों को वहाँ पर लिख लें, रेखांकित कर लें। If you have your Bible, put next to lion, put dream. और जो सिंह जो शब्द वहाँ पर दिया गया है, आप उसके आगे लिख सकते हैं स्वप्न, या जो सिंह है वह स्वप्न की ओर इंगित करता है। The lion represents our dream. और जो सिंह है वह स्वप्न का प्रतिनिधित्व करता है। Let me try to give you a little picture of the story. अब इस कहानी का थोड़ा चित्र मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। Do you guys know what snow is? Have you ever seen snow on? आपने हिम देखा है जो बर्फबारी होती है? Dr. Thomas knows what snow is. डॉक्टर थॉमस को पता है कि हिम He's क्या from होता है? Chicago. He's from where I'm from. We have a lot of snow. और जहाँ से हम आते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। And snow is these white flakes that will come down from the sky. अब देखिए ये जो बर्फ जो आसमान से नीचे गिरता है हिम ऋतु में, उसे हम हिम कहते हैं। And sometimes you get a good snowstorm, you can't see anything. कई बार तो इतना ज्यादा हिम की बर्फबारी होती है कि हम देख भी नहीं सकते क्या हो रहा है। And the snow will pile up on the ground and get really
really high. और जो बर्फ है, जो हिम है, वो पूरा इन ढेर में इकट्ठा हो जाता है। And so Benaiah's out and there's a snowstorm. अब देखिए, बनाया बाहर है, तलाश कर रहा है, यहाँ घूम रहा है और वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। But I know it just says a snowy day, but I want to give you a picture and I'm going to make it like a story. और यहाँ पर पता है हमने हिम ऋतु नहीं देखी, लेकिन एक चित्रण आपके सामने रखना चाहूंगा ताकि आप समझ पाएं। I want the story to come to life. और मैं चाहता हूँ ये जो कहानी है वह जीवंत हो जाए। So he's out in the snow and he can't see anything. अब देखिए, वो हिम ऋतु में बाहर है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। And he's walking this way and all of a sudden he hears a big roar behind him. वो चलकर मार्ग से जा रहा है और एक बड़ी चिंगाड़ने की उसे आवाज सुनाई देती है। Let me tell you, most people when they hear a roar, they run from the roar. अधिकतर लोग जब इस प्रकार से सिंह के चिंगाड़ने की आवाज को सुनते हैं वो वहां से भाग निकलते हैं। Benaiah, when he heard the roar, he turned around to see what it was. लेकिन जब बनाया ने इस चिंगाड़ने की आवाज को सिंह के मुंह से सुना, वो पलट कर उस ओर गया कहां से आवाज आ रही है। Benaiah was a crazy man. अब बनाया कहें तो थोड़ा सन की किस्म का व्यक्ति था। And so it's snowy and he can't see anything. बर्फबारी हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। But instead of running from the lion, he chases the lion. वो सिंह से बचकर भागने के बजाय वो उसका पीछा करता है। And he takes the lion and they go down into a pit and they have a fight. अब देखिए, वो उसे लड़ने के लिए गड्ढे में उतर जाता है और वहां पर उसे लड़ाई शुरू करता है। And if you guys were watching the movie, all you would see is snow. यदि आप मूवीज फिल्मों को देखते हैं, आपने देखा होगा जब बर्फबारी होती है सब तरफ बर्फ होता है, हिम होता है। And you could hear this fighting going down in the pit. There's a lot of fighting going और on. आप देख रहे हैं, चित्रण कर सकते हैं, गड्ढे के अंदर सिंह और बिनाया के मध्य में लड़ाई हो रही है, युद्ध चल रहा है। I imagine Benaiah had his sword and the lion scratching him with his claws. आप देख सकते हैं कि बनाया के पास तलवार है और सिंह अपने नाखूनों से उस पर आक्रमण कर रहा है। And all of a sudden there's silence. अचानक से वहां पर शांति छा जाती है। And you hear these footsteps come out of the pit. फिर आप गड्ढे से बाहर पैरों के कदमों को सुनते हैं जो बाहर आ रहे हैं। Everyone who's watching the movie thinks that the lion comes out of the pit. अब सबको जब देख रहे हैं वो ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि उस गड्ढे से सिंह बाहर आ रहा है। But out of the pit comes Benaiah. लेकिन गड्ढे से बाहर सिंह नहीं परंतु बिनाया बाहर आ रहा He है। was victorious. वह जयवंत हो जाता है। So what does this mean for our dream, for our life? तो हमारी जिंदगी के स्वप्न के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? Remember, the lion is our dream. अब देखिए, ये जो सिंह है वो स्वप्न का प्रतिनिधित्व करता है The snowy day represents the challenges in our life. और ये जो हिम ऋतु है वह चुनौती का और हमें इंगित करती है। And something about challenges, we don't always see what the future holds, like snow in our face. चुनौतियों के यदि आप तुलना हिम से करें तो जैसे हम जब हिम ऋतु में सामने देख नहीं सकते क्या कुछ हो रहा है, चुनौती भी इस प्रकार से सामने आती है, आपको आगे क्या करना है पता नहीं। And sometimes when we can't see what's going on, we get scared and we lose focus of our dream. कई बार आगे क्या हो रहा है जब हम देख नहीं पाते, अपने स्वप्न से अपने ध्यान को हम भटकता हुआ देखते हैं। Just like Joseph's life, there was many trials. जिस प्रकार से यूसुफ के जीवन में बहुत सारे संकटों का समय आता है। Just like Benaiah was affected by the snow. बनाया के जीवन में देखें उसके ऊपर हिम की बर्फबारी हो जाती है। Let me tell you something. None of those things stopped God's plan. इनमें से कोई भी बातें बताना चाहूंगा परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकी। I believe this was a divine appointment for Benaiah. तो ऐसा विश्वास करता हूँ यह परमेश्वर के लिए द्वारा नियुक्त किया गया बनाया के जीवन में एक घटना था। Benaiah could put this on his resume. I killed a lion on a pit on a snowy day. यदि बनाया चाहे तो अपने जिंदगी में पाए हुए उन महाप्रतिष्ठा की बातों में से एक वह इसको भी जोड़ सकता है कि उसने एक बड़े सिंह का वध कर दिया। And lastly, the pit represents where our dream is. अब अंततः जो गड्ढा है या गड्ढे का यहाँ विवरण किया गया है, आपका स्वप्न कहाँ है इस बात की ओर इंगित करता है। I'm telling you, if you will work hard, trust God, and be faithful for a long time, God will position you for your dream. यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि वो पूरा करेगा, आप अपने स्वप्न को पूरा होता हुआ देख पाएंगे। And I'm telling you, there's going to be a moment in your life where you can reach your dream. कहना चाहूंगा कि अब ये वो घड़ी होगी आपकी जिंदगी की जो अपने स्वप्न को आप हाथ बढ़ाकर थाम लेंगे। Just like Benaiah went into the pit. जिस प्रकार से बनाया अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए गड्ढे में उतर गया, Sometimes we have to go in the unknown with God. उस प्रकार से हमें भी अपरिचित स्थानों में परमेश्वर के लिए जाना पड़ेगा। And just like Joseph had to interpret Pharaoh's dream, जिस प्रकार से यूसुफ ने
फिरौन के उस स्वप्न का व्याख्या किया। There's going to be a moment in your life where your dream will come true. आपके जीवन में भी ऐसा ही एक समय आएगा जब आपका स्वप्न पूरा हो जाएगा। And if you work hard during your life, यदि आप अपनी जिंदगी में कड़े परिश्रम को करते हैं, you trust God through every circumstance that will come your way, हर एक परिस्थिति जो आपके मार्ग में आती है, आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं time will not be an issue for you. और समय आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। If you're faithful, God is faithful. यदि आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य रहेगा। And when your time comes, and it may take time, but when your time comes, you will be ready. और जब आपका समय आएगा, आप देख पाएंगे, आप तैयार रहेंगे और स्वप्न पूरा हो जाएगा। We are called to be lion chasers. और हमें बुलाया गया है कि हम भी विनायक के समान सिंह के पीछे चलने वाले हो जाएं। We are called to be dream chasers. हमें स्वप्न के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है। How many of you guys are ready to chase your dream? आप में से कितने लोग अपने स्वप्न को पूरा करने के लिए तैयार हैं? You guys been thinking about this for a long time. आप बड़े लंबे समय से इस विषय के में सोच रहे थे। I'm telling you right now, life may not be easy. मैं कहना चाहूंगा, हो सकता है आपकी जिंदगी में बातें आपके लिए आसान ना हो। Just like Joseph, some people might not like you. यूसुफ के समान हो सकता है लोग आपको भी पसंद ना करें। It doesn't matter. We're called to work hard. परवाह नहीं पड़ता, आपको कड़ी मेहनत करनी है। It doesn't matter if people like you. When the God of the universe says, I love you. जब परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लोग आपको चाहे ना चाहे, परवाह नहीं पड़ता। There's going to be challenges that will position you to achieve your dream. और चुनौतियां आपके सामने आएंगी और वो आपको एक ऐसे स्थान में लेकर जाएंगी जहां पर अपने स्वप्न को आप पूरा कर सकते हैं। And sometimes we won't know what the outcome is. तो हमें नहीं पता कि इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। We have opportunities to question God. सौभाग्य हमारे सामने आएगा जब हम परमेश्वर से चाहे तो प्रश्न कर सकते हैं। Which is like Joseph, in every situation in his life, we're called to trust God. आप यूसुफ के देख सकते हैं, हर एक परिस्थिति जो उसके सामने आई, उसने परमेश्वर पर भरोसा किया। I'm telling you, just like Benaiah, who went into the pit on a snowy day and chased the lion and killed him, you too can achieve your dream. जिस प्रकार से बनाया हीन ऋतु में गड्ढे में उतरकर सिंह का उसने वध किया, आप भी अपने स्वप्न का पीछा कर सकते हैं। How many lion chasers do we have in our room? और यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जो सिंह के पीछे जाना चाहते हैं? Are you guys ready? क्या आप तैयार हैं? Follow your dream. God will bless you. Amen. स्वप्न के पीछे जाएं, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आमीन। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो।